you are. Parul is a daughter of an auto driver who used to drive auto in Jammu. So how is it working in the UK? इंस्टाग्राम पे दिख रहा है और वो ये सारी चीजें बिल्कुल सच होती हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है। Or anybody who was there to help you during that time? फादर होते या मेरा भाई होता तो मुझे इन लोगों के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। When you were missing that love, you became a hyper independent. कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए जब कोई करता है ना, you feel irritated. Welcome to Dopamine High. Hi, thank you so much, Aisha, for having me here today. Thank you. How are you feeling today? I'm good, great, because it's been a long time. I'm watching your videos, your page, I'm following, and the work you are doing for community, that's really amazing. Thank you so And much. all the interviews are always very, very, we can say that motivated and without any controversies. Thank you so much. Could you please introduce yourself for our audience? Yes, basically, presently I'm working in a UK London and one of the radio station, Asian Star Radio London, and I'm from here, from this land only, and somewhere somehow when I started working there, so when I started introducing that so many personalities from Jammu we have in Bollywood, and Jammu is not only famous for militancy and all, for other things as well. And if we talk about now, so city of temple, Jammu is always called a city of temple, but now it's called a city of talent as well, because so much talent we have which people are not aware of, and so many actors who are doing wonderful job in Bollywood, and they belongs to Jammu and Kashmir. I think people should know that. So yes, so this is all about me, and I born in Jammu, brought up in Jammu, married in Jammu, blessed with a son in Jammu, and now at the moment I'm working in UK. Could you tell us a little bit about your childhood and who you are? Basically, I belong to not a middle class family. You can, when I was a child, you can take it below that as well, because people who are not aware, they might be thinking, because जो हमें Instagram पे दिखता है, that's not real. I always convey this to people कि अगर कोई हंसता दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हंस ही रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेसफुल जर्नी पे है, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई हार्ड वर्क नहीं करा है लाइफ में. और सेम हैपन विद मी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बिलो दैट इवन माई. आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे बताते बिल्कुल भी नहीं ऑकवर्ड लग रहा है, बिकॉज दोज पीपल हु थिंक्स दैट Parul is whatever she's doing, she is doing very well. I want to convey that Parul is a daughter of an auto driver who used to drive auto in Jammu, and still my dreams, I never compromise with my dreams, because my mom always say that तुम करो, मैं हूँ ना पीछे देखने के लिए. तो मैंने वो चीज़ कभी नहीं छोड़ी, और जो मुझे लाइफ में चाहिए था उसके लिए आई अर्न वट एवर आई एम टुडे. आई एम नथिंग, एक्चुअली नथिंग. आई एम, बिकॉज बट द थिंग इज, हमें कुछ अचीव करने के लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और एक चीज़ पे स्टेगनेंट रहना पड़ता है कि ये नहीं है कि आई गॉट मैरिड या मेरी शादी जो है किसी फारफ्लंग एरिया में हो गई है तो मैं अब अपने ड्रीम्स को छोड़ दूँ, या आई एम अ मदर सो मुझे छोड़ना, मुझे इन लॉज अच्छे नहीं मिले हैं तो मैं गिव अप कर दूँ. आई जस्ट गो फॉर अ ब्रेकिंग द मैरिज, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ कि आप सबको जब अपने साथ लेके चलते हैं, और जब आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, और उस टाइम पे अपने फेवर में करने के लिए आप कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उन सबकी खुशी को साथ लेके आप चलते हैं और आप अपनी सक्सेस तक पहुंचते हैं. मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपस में, बिकॉज व्हेन यू नो यू आर राइट, और चुप रहना, that's a big task. So you said a very big statement कि when you know you are right and chup rehna is a big task. Can you explain what you mean by that? And there are a lot of people who get dominated because of this. You took it in a good way. It is your pride. But there are a lot of girls who get dominated. So what would you like to tell them? See, the thing is कि बहुत बारी ऐसा होता है, अगर हम
छोटी सी एग्जांपल इन लॉज पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर व्हेन गर्ल गॉट मैरिड, बहुत मुझे भी था व्हेन आई गॉट मैरिड, कुछ अलग, आप एक हवा में होते हो 25-26 की एज में, आपको रिस्ट्रिक्शंस का कुछ नहीं पता होता है, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आई नेवर हैड अ रिलेशन ऑफ दादी दादू नानी नानू, बिकॉज दे ऑल गॉट एक्सपायर्ड बिफोर आई born, so I didn't have that love in my life. So when I got married, so वो होता है ना, मदर इन लॉ सिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ें, कि वो जो है तवा है, अगर हॉट प्लेट है तो उसको खाली मत उतारो, फिर उसके बाद लास्ट वाली जो चपाती है यू हैव टू कीप फॉर फॉर हमारे पूर्वज जो हैं उनके लिए रखो, तो बहुत इरिटेट करती हैं ये चीज़ें। लेकिन जब आप उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हो तो वो रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपकी फैमिली टूटेगी, आपकी उनके दिमाग में आपके लिए एक गलत इमेज बनेगा, आपको नहीं ठीक लगा, ओके क्वाइट फाइन, आस्क द रीजन कि क्यों, मे बी द रीजन इज वेरी अप्रोचेबल, आपको बहुत कन्विंसिंग, आई मीन टू से कि बहुत कन्विंसिंग हो, और उन चीज़ों में कभी रहना पड़ता है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो फैमिली में होती हैं, है ना। तो माई मम सेड मी वन थिंग, शी सेड पारुल, जब एक प्लांट को एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगाया जाता है ना, वो टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉट से लगाया दूसरे में तो वो आज ही बिल्कुल ग्रो कर जाएगा, फ्रूट देने शुरू हो जाएगा एंड वी ऑल विल बी हैप्पी। तो वो जो उसको हम स्पेस दे रहे हैं उस प्लांट को, वो स्पेस भी उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है, और प्लांट भी जो है वो भी टाइम लेता है अपनी रूट्स को पकड़ने में। तो मैरिज इज ऑल अबाउट दैट। तुम मेरे घर से, मैं तुम्हें किसी और की घर पे लगा रही हूँ, तो यू विल टेक टाइम एंड दे विल ऑल्सो टेक टाइम, दे विल ऑल्सो टेक टाइम टू एडजस्ट विद यू, कि एक नया इंसान हमारी फैमिली में आया है। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपको लगता है कि आप सही हैं और आप चुप इसलिए है कि उसके पीछे रीज़न है अपने रिश्तों को बांध के रखने का या लाइफ में उससे कुछ बड़ा करने का। तो मुझे लगता है कि कई जगह पे हमें, ठीक है, अगर उसी टाइम हम रिएक्ट कर देंगे ना, तो जिसको समझ में आना भी होगा ना, वो भी नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि जब उसका मेंटल लेवल जो आपसे कह रहा है थोड़ा नॉर्मल है, काम है, देन यू कैन कीप योर पर्सपेक्टिव एज वेल कि मेरा ये है। You spoke about your father and you had the pride in you. You're a proud daughter. Could you tell us one lesson that he gave you that you would carry forward for the rest of your life? सी बहुत बारी ऐसा होता है, शायद मेरे साथ भी होता था कि जब मैं छोटी थी तो बहुत बारी ऐसा होता था कि मैं अपनी फ्रेंड्स को घर नहीं बुलाती थी। मुझे ये होता था कि वेरेवर आई गो टू देयर प्लेस इट्स ऑलवेज लुक्स वेरी स्पिक एंड स्पैन, बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो शायद अगर मैं उनको अपने घर में बुलाऊंगी तो मेरे घर की कंडीशन देख के दे विल they will not feel good. They will say, oh तुम्हारा घर ऐसा है वैसा है, because we used to live in a one room, I still remember, and my mom used to stitch the clothes and the machine was there only, and so much congested, I hardly find a place to study. So ऐसा टाइम भी था, और बहुत बारी ऐसा लगता था, मैं बोलती नहीं थी कि माई फादर इज़ अ ऑटो ड्राइवर, मुझे लगता था यार हाई इनके फादर तो कोई शॉपकीपर है, कोई डॉक्टर है, दे माइट बी थिंकिंग कि यार इसके पापा ये करते हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे नहीं बताना चाहिए, बट शायद बचपना था। उसके बाद लगा कि जब मम्मा ने मुझे पूरा सपोर्ट करा, पूरा उस चीज़ में हुआ, और मैंने भी देखा कि वेदर माई फादर इज़ अ ऑटो ड्राइवर और व्हाटएवर, बट मेरे लिए हार्ड वर्क तो कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत, बिकॉज I was born after my mom got married, I think after 3-4 years, and my mom told me one day, Parul, we were not having any child, and he used to pray to Mata, Bave Wali Mata, कि please मुझे एक लड़की ही दे दो। तो even we people, Brahmin people, we believe in horoscope so much, huh? So it was mentioned there that if you place with a child, वो तुम पे भारी होगा। सो अभी बाहर तो, या अभी भी अगर हम बच्चों से बात करें तो दे डोंट एग्री विद दिस थिंग कि क्या है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच होती थी, एंड आई हैव सीन दैट, क्योंकि व्हेन आई वाज बोर्न माय डैड got injured in bomb blast. Oh God. There was a bomb blast in Purani Mandi. I don't remember the year exactly. I think it was in 1990 or 91. So he got injured, and when I went to hospital, I saw him, his whole body was in bandages and his only one eye was open, and I was holding hand of my one of my uncle, and they just took me there, and the moment I saw, I was very scared, and the God was not, वो कहते हैं ना टेस्ट करना, वहाँ पर ही भगवान ने बंद नहीं करा था।
every month, because he was having, when you met with some blast and all, so you have some kind of small bullets in your body. Right. And it's not easy to take bullets from every part of your body, because the gun bullet is something else, but when you met with these kind of happenings, there are something else. So it was in his body for whole of his life, and he was paining somewhere here, there. But my mom, she gave her whole life to my dad actually. उन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, और मैं देखती थी ये चीज़ें कि कितनी स्ट्रांग है, शी सो ब्यूटीफुल. और आज बहुत बारी ऐसा होता था कि मैं बोलती थी, मम्मा यार आप क्या अब पापा के साथ इतना हार्ड वर्क, मतलब एवरी टाइम समटाइम लोगों को लगता है कि यार, बोलते हैं कि काश मेरी शादी कहीं और हुई होती, ऐसा क्यों हो गया. After that also, so many things, he met with like injury in the back as well, और somewhere मुझे लगता था I am the reason. मुझे लगता था I am the main reason of all whatever is happening. I am the one, it's just happening just because of me. Were you ever guilty? Yes. Yes, I was feeling. I used to cry even for some when I was a child. I said, मम्मा अगर मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता ना. मम्मा बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है पारुल, ऐसा नहीं है, ठीक है, fine ऐसा. So it's a part of life. But whole life, my childhood, when my father was alive, I have seen him in hospitals. और बच्चे होता है weekends में घूमने जाते हैं. I used to spend my weekend in hospitals in Saturday Sundays, because Saturday Sunday को स्कूल ऑफ होता था और मम्मा वहीं होते थे, and she used to call me on there. 2 years I continuously, he was in a hospital continuously every time, even when he died in 2010, that time also he was in hospital. So this was my journey. So how you can think in that time that you become something, you want to fulfill your dreams, so everything finished then and there. So yes, but only thing that I want to do something in music with a mic or something. So this is all about. You said you wanted to do something in music. Did you pursue that? Actually, honestly, when I was because family, जैसे कि मैंने explain करा, the family condition was not good. So when I came in a 11th standard, so the worst part of the life, I felt कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए. बचपन में तो you do hardly realize कि मम्मा क्या कर रही है, कहाँ से पैसे ला रही है, you don't know, है ना. तो जब हुआ तो मुझे बोला गया कि we have to leave. I used to study in Jain school. That was it is in a city, Moti Bazaar, I think. That time it was a very good school actually, and still it's a good school, but that time fee structure was very high. Now as per the economy and all, it's fine, but that time we were not able to afford that. So she said, Parul, we have to leave this school and we have to go to Mubarak Mandi school, girls school. I was very shocked कि मेरे friends सब यहीं पढ़ रहे हैं, मुझे क्यों बोला जा रहा है, what is the reason, because I was not in that mental state कि मैं समझ पाऊँ उस चीज़ को. और समझा फिर और गए. मेरी फ्रेंडशिप जो थी, you had to leave your friends and all, and कुछ होते हैं ना, कुछ फ्रेंड्स कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ बोलते हैं ओ अच्छा तुम वहाँ क्या रीज़न है, एंड दैट टाइम यू फील वेरी ऑकवर्ड कि मैं इनको क्या एक्सप्लेन करूँ, दैट आई डोंट हैव मनी, माई मम कांट अफोर्ड दैट. तो फिर लगा कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई ख़त्म करना है, एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली. और yes, then I started working very early, and the which I wanted to do, that I wasn't able, because that needs money, because music was my passion. And when I went to Indian Idol, so first round was very good, and second round has been cancelled, and they said all the contestants, you can go back to your city whenever we will plan auditions, so we will call you again. So I came back in Jammu, and I think around 9 or 9:30 at night, I got a message that tomorrow you have an audition in Delhi and you have to come. How I can do that? I was not having any source of going by air, no money, you can't go by train, who's going to go with you, your dad is not well. So I left those things there only. So yes, this is how it happened. And now when I was in London, so because singing ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि when you have a talent और कभी आप में कोई passion है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ जो है उस classes में जाके रियाज करना है. My रियाज time is when I cook, when I do my household chores. And my husband is always, he's aware about this, when I work in kitchen or when I sing, if they interrupt me between singing, oh my god, it's a big issue then. So they understand this thing. So this is how I continue my practice, and still
Yeah, I have. So now I'm there. Somewhere, somehow, at least 70% of that passion I achieved, I think. So this is how, yeah. So how is it working in the UK? सी बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच होती हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ से जाते हो, वही सेम बात मैं यहाँ भी बोलूँगी कि एक सब कुछ बना बनाया छोड़ना, क्योंकि व्हेन आई गॉट मैरिड, सो माय मदर इन लॉ शी यूज्ड टू डू द बुटीक वर्क. So when I got married, I took that work on me, and I used to work in the school. After coming back at 3:30, I used to sit in the boutique and look after. So very good it was doing, very nice. And suddenly, because I wanted to do something which I was not getting here, so and when I was having my son as well that time, so I wanted to acquaint him with a bit language accent. So I thought he's not gonna get here. I think for some time we have to move out. So we went out, and very crucial time we have seen, but by the God grace, God is always helping me. And I think हर कदम पे वो जो कहते हैं ना कि मतलब ऐसा है कि दिन में बहुत सारी बातें भी होती हैं, ऐसा है, मतलब इतना बिलीव है कि अगर हस्बैंड भी अगर कभी कुछ बोल देते हैं इस चीज़ पे कि मतलब रिलीजन, एंड फॉर मी all the religions are same. Even I taught this thing to my son as well, because when you go out, you come across with lot of communities, you Pakistani communities, Christianity, Muslim, so many Muslim people are there, Jewish are there, so many. And वो चीज़ पे बच्चे को हमारे जम्मू में शायद कुछ हद तक अब खत्म हो चुका है, लेकिन होना चाहिए. गॉड हैज़ अ वन फेस. डोंट टीच योर किड्स कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बिकॉज अल्लाह है, इट्स लाइक बहुत सारे फेस हैं. आपको कौन सा प्यारा लगता है, इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपको कौन सा अच्छा लगता है. सो वी सेलिब्रेट ईद एज वेल, वी सेलिब्रेट like Guru Purab as well, we celebrate all our Hindu festivals as well. So बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो इट्स इंडिया के हिसाब से यू फाइंड एवरीथिंग वेरी एक्सपेंसिव, और जॉब मिलना, सुबह अपने काम पर जाना, और अगर आपके पास जॉब नहीं है, यहाँ पे तो फैमिलीज होती हैं कि आपको लुक आफ्टर कर लेती हैं, या आप कोई शॉप खोल लोगे अपने घर के बाहर, वहाँ तो एवरीथिंग यू हैव टू टेक अप अ मिशन, यू कांट ओपन एनीथिंग, इवन सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. आई थिंक उस country, that's why they are growing. Even now India is also growing very nicely, rapidly, and it's coming, अगर growth की बात करें, it's on second or third rank, it's very good. तो उनके पास already they developed. The reason is कि जैसे कि हम जो you might be, you're from you got an opportunity to be there, and you know that you can't watch even television without license. So initially बहुत वो था, I got a job in a medical department, though it was not at all my cup of tea. कहीं दूर दूर तक भी मेडिकल का कुछ नहीं था, but I thought okay fine, I got a job, I'll start it doing. और उसकी जॉब मेडिकल में होता है कि जैसे मेडिकल में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, और उसमें व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, और इतना अच्छा नहीं था विच आई वांटेड टू डू, बिकॉज आपको मैटरनिटी वार्ड मिलता है, और लोगों को भी मतलब मेरा ब्रॉडकास्ट सुन के पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ है और क्या है नहीं. सो मैटरनिटी में मिलता है, यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग, yeah, and you had done your education, you have your double masters, you had done your MBA, you belongs to a Brahmin family, and you're doing all these things. So one day came like, and I never told these things to my family. I know, oh, I'm doing a very good job, I'm earning very well, everything is going fantastic, because somewhere I thought that my mom had done a lot of hard work for me. If she comes to know what work I'm doing at the moment, after leaving everything, the good life here in Gandhinagar in Jammu, and I went there for doing these things, तो फिर वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपका दिमाग से आप क्या सोचते हो. And while working there, I think it was just 2 months. After 2 months, and I met with the supervisor of the ward, and he said I was doing activities with one of the lady there. So he said, Parul, you know activities and all. I said, yes, I know. I have a passion about activities. He said, okay, if we'll appoint you as an activity coordinator, how it will work for you. I said, okay, fine then. So I started working there as activity coordinator. They put me in one of the care home. Then you might be aware, huh? So care home, there I used to go for the activities I did. And in the meanwhile, like I think after 2.5 2 years,
every day I used to listen radio so much I used to listen. और वो होता है ना कि अपने एक पोक करते रहना कि अरे ये ऐसा नहीं बोल रहा है, इसको ऐसा बोलना चाहिए था ऐसा. सो माय हस्बैंड वाज लिटरली फेड अप. ही सेड पारुल व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर दीज थिंग्स, अगर तुम्हें लगता है कि यू कैन डू वेल. आई सेड यार लंदन में मुझे कौन लेगा, क्या मतलब क्यों लेगा, दे ऑलरेडी हैव सो मच टैलेंट हियर, सो व्हाई दे विल टेक मी. I applied for two of the radio station, and by God grace, I got selected with one of the radio. And when they came across, like because theater helped me a lot. Theater helped me a lot. Matlab, shape up my whole personality. And it was a big moment when I interviewed Balwant sir on radio. And yes, and theater was a big achievement for me. Though I left that, बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि थिएटर को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं शाहरुख खान की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की और अनुपम खेर जी की, ये सभी लोगों की एक्टिंग जो है हमें इसीलिए रियल लगती है बिकॉज दे आर फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड. You just mentioned God. Do you believe in destiny? Yes, I do believe. बट एक कहते हैं ना कि अपनी बनानी भी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है. अगर मैं बोलूँगी कि आज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई बिलीव ऑन डेस्टिनी दैट इट विल हैपन, इट विल नेवर हैपन. बिकॉज You gotta be. yes you have to be practical. बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपने मेहनत नहीं करा है, you didn't do anything for that, and if you will not achieve, so you can't blame anyone, you can't blame God, you can't say okay मेरा इसलिए नहीं हुआ, आपने मेरा क्यों नहीं सुना. बिकॉज जो भगवान है वो है तो हम हैं. बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मेरी किस्मत में था, सो अभी नहीं मिलेगा. कई बार होता है कि हम मांगते हैं हमें नहीं मिलता है, हम बोलते हैं यार मुझे क्यों नहीं मिला भगवान जी, मैं तो आपकी रोज़ पूजा करती हूँ ना, तो मुझे क्यों नहीं मिला. तो वो तो नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे. लेकिन ये है कि वो चीज़ अगर आपको पूरे दिल से पूरी शिद्दत से चाहिए थी तो शायद थोड़े टाइम के बाद ज़रूर मिल जाएगी. ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक छोटी सी मतलब अगर आप भगवान की बात कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ कि 2023 I went to UK. When I reached there, October I reached there, October 17, and 24th of October there was an event of Emmy Weir. And I am very much because singing, I love that. I love Punjabi singings and all. So I was literally fighting with my husband. I want to go and want to see that concert. The ticket was, I think, £300 something as per the Indian currency, and you just moved to a new country, and it's a big thing, yeah. So he said, Parul, I can't afford. I can't give you this money. I can use instead of those things. You can try later. That time I said, भगवान जी प्लीज मुझे मिला दो ना प्लीज यार. मतलब वो कहते हैं ना समटाइम मैनिफेस्ट करना, और आप बचपना अपना यू हैव टू बी मैच्योर इन द सोसाइटी एंड उनके सामने बोलना. नहीं हुआ, फाइन, मतलब मैंने आपको बोला था, यू डिडंट डू दैट. यू विल बी शॉक्ड. Emmy week by call by Asian Star Radio, he was there and he's very good friend of my boss. And I was so shocked when I joined Asian Star. I said, I was just saying, oh, he was here. He said, what? We were the one who called him and he was here. I said, oh, see, that time I said, God, please, मुझे मिला दो. और वो Asian Star में, whenever he come to London, he visit Asian Star. Whenever. And he's very good friend of our management, जितने भी members हैं. So उन्होंने बोला कि मिलाने की बात है तो हम वहीं पे पहुंचा देते हैं. So this is how God works for me actually. This is how, yeah. So in between your UK journey and when you left India, what were you doing? That time I was teaching in Army Public School, Khalujak, and that was also a big decision because usually people don't get a chance to work because so many examinations you have to go through and you have to clear the entrances and so many things. It's very hard to get a job in an army school, defense sector. I was the one who gave the resignation myself that ma'am, I'm going out. So she was like, Parul, you gave your 3 years here, and people literally, I said, ma'am, but I want to take a risk in my life. I just want to see, like, agar kuch nahi hua, I'll come back, but I have to go because I can't work. So that was a risk. I was doing very well in my boutique work as well. I left that. The biggest challenge was to leave my mom alone here because my dad is not with them, no brother, not very much good, support from the relatives. She was all alone with my sister. And
I still remember whenever I used to discuss with people कि मैं बाहर जा रही हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता था, what about your mom and sis? What about your mom and sis? I said it's like a कहते हैं ना एक hard time for me as well, for them as well. Once everything would be settled, once I'll be whatever I want, the reason behind I'm going there fulfilled. So I think everything. And when I left this country, still because कहते हैं ना कि ब्रदर नहीं है कुछ भी है तो भगवान पे बड़ा फेथ है तो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट साईं बाबा प्लीज आई एम लीविंग you are the one who has to take care of my sis and my mom. If anything will be happen, I'll ask you. I will not ask any. And honestly, my mom always, when they are in their 65, 70s, they always, health का issue रहता है. तो मेरे होते हुए यहाँ फिर कुछ होता था, मतलब बीमार हो जाते थे, हॉस्पिटल पे जाते थे. In these 3 years, by God grace, nothing happened. Nothing happened. He took everything, all the responsibilities on him, whatever I handed over to him. And yes, this is all about what I was doing, like the job I was doing, my boutique work I was doing there. My husband was running his business. We left everything, started because it's very difficult when you go to a new place. Yes, you have to make yourself familiar with those gullies और ये वहाँ जाना, हर चीज़ को explore करना. You don't know from where to get the medicine. It's very hard. It's very hard. But ऐसा नहीं है. अगर आपको लगता है कि you can do, अगर पूरा ऐसा है कि हम पीछे से support लेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि नो नीड टू टेक द रिस्क. अगर आपको अपने पे पूरा बिलीव है कि मैं कर लूँगा, आई मैनेज, और मेरे पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ के आया हूँ और पीछे के दरवाजे बंद हैं. ऑनेस्टली आप तभी ग्रो करते हो, कुछ करते हो लाइफ में, व्हेन यू फील दिस थिंग कि पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है. अब मैं जहाँ हूँ, आई हैव टू बी परफेक्ट. जो मुझे सिखाया गया है सोसाइटी से, मेरे पेरेंट्स से, आई हैव टू यूज एवरीथिंग नाउ. दिस इज द टाइम. How was your journey when you were an air hostess? When I started my career, because air hostess I never thought of becoming air hostess actually. और बस एक वो था कि फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत है और एक चमकती हुई चीज़ दिख रही थी कि ओके अगर यहाँ जाओगे तो वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग सो यू विल गेट अ जॉब इजीली. इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज नॉट हैविंग एनी वैल्यू फॉर मी कि वो एयर हॉस्टेस है या मैं होटल इंडस्ट्री में जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. द मेन परस्पेक्टिव वॉज कि एयर हॉस्टेस का सैलरी अच्छा होता है और मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगा सो दैट आई कैन हेल्प माई फैमिली. So I just started my training, and after completing my training, after 3 months, I got selected. When I went there, so कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. Now this industry has done a marvelous job, and It's everything. Yes, respect in people eye. And previously somewhere somehow जम्मू के वो जो कुछ मेंटेलिटी वाले लोग बोलते थे एयर होस्टेस है बीवी, मतलब बहू हमारी, या कुछ इस तरह का होता था उस टाइम में 90s, बिकॉज आई बिलोंग्स टू 90s किड्स. तो ये चीज़ भी रहती थी. शादी के लिए भी बोला जाता था कि अच्छा एयर हॉस्टेस है फिर तो वो कहाँ, मतलब एक अलग है ना दिमाग में रहता था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग. लेकिन जब क्योंकि आप बचपन ही से बिल्कुल उठ के जाते हो, यू आर नॉट इवन 18 ईयर्स और आप 16-17 में आपको काम में डाल दिए, सफाई करना है पूरा, यू हैव टू क्लीन अप एवरीथिंग, एंड इट्स वेरी पेशेंटफुल जॉब है. You have to be very patient in this job. If somebody all the people are not very much professional and very polite. Sometimes they still now, till you might be experienced with someone when you go by flight, some people are very arrogant. They think that we came from heaven, and they just think that these are our in our service, and whatever we want they can offer us. Aisa nahi hota, because now people are having that sympathy and that respect and the profession, that it's very hard these days to become an air hostess. That time it was very easy with these agencies. They hire girls and they train them and they put them there. तो वहाँ रहा. तो जब उसके बाद पहली चीज़ तो थी कि आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड. पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी. फैमिली सिकनेस बहुत ज़्यादा था. एक तो बाहर रहा नहीं जा रहा था कि याद आती थी. एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे तारे ज़मीं पे मूवी बहुत चलती थी और उसमें गाना था मैं कभी बतलाता नहीं. ओह माय गॉड, आई यूज्ड टू लिसन दैट सॉन्ग एंड यूज्ड टू क्राई द मोमेंट आई स्टेप्ड इनटू माय ऑफिस. आई यूज्ड टू क्राई लिसनिंग दैट सॉन्ग. आई यूज्ड टू प्ले एंड देन आई यूज्ड टू क्राई सो मच. देन व्हेन आई सॉ द थिंग्स, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं कॉपरेट कर भी लेती, कि मैं, मेरी मदर शी यूज्ड टू से नहीं पारुल इतना हार्ड वर्क करा है, पेशेंस रखो, हो जाएगा हो जाएगा.
बट मेरे से रखा ही नहीं गया. Then I left their job, I think after 4-5 months, and then I applied for another one. So it was a very short journey, but वो कहते हैं ना जिंदगी में हर चीज़ आपको कुछ सिखा के जाती है. I learned so many things from there because when you, because when you get yourself into these trainings, the first thing they give you the grooming classes. They most of the big brands, like that time I think Color Bar was very famous brand. I don't know whether I am allowed to quote anybody brand's name here or not, but Color Bar were very, so they used to their brand ambassadors used to come interact with the air hostess. They used to teach them how to do the makeup and everything, these things. Then they teach you that how to walk with them, because I was in 12th standard, and I wasn't know even how to walk with the heels. I wasn't know. So they taught us that that feminine चीज जो है वो आप में नहीं आती है if you wear plain slippers and all these things, because not everybody teaches this. They people, it's requirement of that industry actually. So they teach you these things, your dressing sense when you go for an interview, how you have to dress up, when you have to frame your resume, how it has to look like, what is the difference between a professional resume and the normal one. You have to make it as per the industry, कैसे करना चाहिए. और इसके अलावा swimming, they teach you, they give you lessons, because when you are an air hostess this is a compulsory thing that you have to learn the swimming. So वो जो चीज़ें थी ना, that helped me a lot. Like by God grace I can say, मैंने छोड़ तो दिया, बट बहुत सारी चीज़ें वो जर्नी मुझे सिखा के गई. That will stay with you forever. Forever. So even when you speak, because when I was in India, I used to teach a phonetics classes, accent. So I was very much in these things, देखते रहना, खुद सुनते रहना, अपने आप से बात करना, accent निकालने की कोशिश करनी. That time it was not in my mind that I'll go to UK. कभी नहीं था मेरे दिमाग में. तो वो था, वो चीज़ें जो थी phonetics teacher, when I was working in JK Public School, I was a phonetics teacher there. तो वो जो phonetics था, I learned in air hostess, because you have to deal with some of the clients, in it's alpha, bravo, delta, these are the signs you have to be aware about. तो वो मुझे पहले से उन्होंने वहाँ से जो भी है सिखा दिया था कि ऐसे. तो that thing helped me to earn my bread and butter in Jammu as well that time, कि उसने सिखाया. Right. Can you tell us the difference that you have in Indian radio industry and in the UK? Yes, if we talk about the radio, it's रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अपने थॉट्स, जो लोग थोड़ा सा सामने आई कंटैक्ट बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं, रेडियो ऐसी चीज़ है जो उनसे वो बातें भी जो है उगलवा लेता है ना. तो ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि नोबडी इज़ वॉचिंग अस. लेटर ब्रॉडकास्ट जब भी होगा, ऑन एयर में जब भी होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो उनकी जो दिल की बात है वो आ जाती है, क्योंकि टीवी में लगता है कि भले कि हाँ सो मेनी पीपल आर वॉचिंग मी, हाउ आई एम लुकिंग लाइक, हाउ आई एम गिविंग द एक्सप्रेशंस. तो रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है. दूसरी चीज़ रेडियो की जो सबसे पहले है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है स्टार्ट की, लोगों को पता भी चले कि रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है. तो रेडियो की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, यू हैव टू बी देयर सो दैट नथिंग विल मिस. एक्शन, मूव्स, विजुअल इफेक्ट्स, वट एवर इट इज, फाइन. रेडियो में है, आप घर के किसी भी कोने में घूमिए, आप कोई भी काम करिए, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इनटू योर माइंड कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कौन सा गाना, किसी की क्या बात हो रही है. तो ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरती है रेडियो की, है ना. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन में, अब तो स्पॉटिफाई, इतने जियो म्यूज़िक है या एप्पल म्यूज़िक है, तो उसमें सॉन्ग्स रहते हैं ना. लेकिन जब हम रेडियो सुनते हैं, जो उसके बीच की वो छोटी छोटी सी आर्चेस की जो स्टोरीज होती हैं, वो हमें बोर नहीं होने देती हैं. जब आप whenever you go for a long drive, even मेरे साथ हुआ है, whenever I do my shows, some of our listeners, they call, they, ma'am, can you please listen some good songs, because I am going to that Portsmouth side and I am on a long journey, can you play some nice music. तो उस चीज़ को वो इन्जॉय करते हैं, गाना है और उसके बीच में है. और अगर हम जम्मू की बात करें, बहुत अच्छा, बिकॉज रेडियो वाले जो है हमारे, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं. एंड साइमल्टेनियसली दे आर रनिंग देयर फेसबुक, इंस्टा एज वेल, एंड दे आर ऑल्सो रनिंग देयर रेडियो प्लेटफॉर्म्स एज वेल. छोटा सा जो प्रिविलेज एक हमें रहता है कि जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज या सिंगर्स हैं, बॉलीवुड की बात कर लें या फिर हम बॉलीवुड की बात करें, तो दे ऑलवेज हैव देयर फ्रीक्वेंट विजिट्स इन लंदन.
हमेशा, जैसे कि अगर हम करीना कपूर जी की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले वो आई थी, और मुझे लगता है कि एवरीबडी गॉट द चांस टू Interact. टू इंटरेक्ट विद इंट्रैक्शन में भी मीट एंड ग्रीट नहीं हो पाया होगा, माइट बी, बट एवरीबडी गॉट अ चांस टू स्टैंड नेक्स्ट टू हर Right. because people are very professional, they don't do like crowdy kind of things there, so सबको चांस मिला था। तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि मतलब हमें बुलाना है स्पेशली, तो इजीली अप्रोचेबल है इन लोगों के साथ। जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे लंदन के रेडियोज़ हैं, अगर मैं अपने के अलावा भी बात करूं तो आमिर खान हो गए, फिर उसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अभी जब उनकी नई मूवी आई थी आमिर खान जी की, तो उसमें उन्होंने अब काफ़ी इंट्रैक्शन किया रेडियो जॉकीज़ के साथ लाइव उस पर। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली अ पॉडकास्ट, दैट वाज अ रेडियो इंटरव्यू ओनली ऑन यूट्यूब। सो दे कीप ऑन टचिंग विद देयर क्लाइंट्स, एंड every time they have this their mind that somebody is calling me from London, so I have to give little privilege, Right. तो क्योंकि जम्मू जो है डूइंग अमेजिंग वर्क, हमारे जम्मू में बहुत टैलेंट है अब तो कहीं कहीं तक, मतलब मुझे लगता है टॉक अबाउट द अब्रॉड एज वेल, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड दे लव टू टेक जम्मू कश्मीर नेम ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ये प्रिविलेज है। लेकिन अगर हम एडवर्टीजमेंट या इन चीज़ों की बात करें, उनमें हमारा थोड़ा सा, मुझे लगता है, इट्स मे बी इट्स माई ओपिनियन, और जो मतलब जो है मेरे साथ उनका है या नहीं, कि एशियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम होती है ऑब्वियसली, है ना। अभी हम जम्मू में हैं तो एवरीबडी लव्स टू लिसन हिंदी, पंजाबी, वहाँ पे द मेजॉरिटी इज बिट लेस, तो इसीलिए आपका जो एडवर्टीजमेंट थ्रो होता है रेडियो पे वो भी थोड़ा सा लेस होता है, उतना नहीं रहता है। हाँ, तो वो जो अगर आप बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सैलरीज है, ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल है जितना आपको एक वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि जम्मू में मुझे लगता है कि जो डेली वगैरह में अर्न करते हैं आरजेस, उनके बराबर ही है करेंसी में। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाउंड का ऑब्वियसली करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो रीज़न यही है कि एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कम्युनिटी हमारी, आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन ब्रिटेन, दैट्स नॉट आवर कंट्री, सो देयर मेजॉरिटी, देयर मोनोपोली इज मच देन वी पीपल, सो there I feel that there is a we people lack. And if we talk about Bollywood and celebrities and all, there we have little upper hand, that's why privilege. What is one thing that you've learned all through these last 3 years as a radio jockey? See, if I talk about the radio jockey, it's been just 7 to 8 months I'm there. Yeah, 7 to 8 months there. It's not been a long time. So, but in these 7 to 8, if I talk about the learning, I came across with so many people, and when they share their journeys, and I got an opportunity to correlate myself with their journeys as well, and somewhere somehow you learn कि जो इंसान आपको जैसा लगता है सक्सेसफुल है, आज कोई, अगर हम एमी वीर की बात कर लें या उसके अलावा कोई और, आरिफ लोहार जी है, यू माइट बी अवेयर, जुगनी किंग जिन्हें कहा जाता है, तो उनकी लाइफ में पीछे कितने स्ट्रगल थे, कितनी चीज़ें उन्होंने करके वो यहाँ पहुँचे हैं। और एक आर्टिस्ट जो है, मतलब कोई भी आर्टिस्ट है, वेदर इट्स अ रिपोर्टर, कोई पॉडकास्ट है, कोई होस्ट है, वहाँ पे इन लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट मीडिया एन आर्टिस्ट इज नथिंग, एंड विदाउट आर्टिस्ट media is nothing. So it's a vice versa, isn't it? So it's a vice versa thing, and when they people come to our platform, they are very humble, very humble. Even few days back, Mr. Malkeet Singh ji, Bhangra King जिन्हें कहा जाता है, he was discussing his journey and he gave us a time of 1 o'clock. He was there at 12:30. I said, I was just a bit shocked, because usually when these celebrities come, they always come 10 minutes late, 12 minutes late. I don't know what they have in their mind, but he came very early. So he said, Parul, why I came early? Because I want to be friendly with you. मैं आके एकदम से कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, you will be bit nervous. I would be bit nervous that what kind of personality is going to interview me today, isn't it? So ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है, और अगर हम नहीं है तो आप भी नहीं है। तो एक वो चीज़ जो है वो लोगों को समझ आनी चाहिए कि एक आर्टिस्ट का कितना वैल्यू है, जो हर किसी को ये आवाज़ का जो है, टैलेंट का या डांस का, हर किसी को नहीं मिलता। पीपल आर हैविंग वेरी गुड लुक्स, बहुत स्मार्ट है, डूइंग वेरी नाइस इन देयर लाइफ। व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट या इस तरह की ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, है ना। तो इनको जितना
मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। अब तो कुछ लोग हैं मतलब हंसाना इज अ बिग थिंग, इजंट इट? लेकिन हम इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कि अगर हम अवार्ड्स की बात करें, हर चीज़ की नॉमिनेशन होती है, लेकिन कभी भी बेस्ट लाफिंग उसकी नॉमिनेशन नहीं होती। कि वो आर्टिस्ट को भी तो देखो यार, आप हमेशा उनकी बात कर रहे हो, शाहरुख, सलमान, अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छे, लेकिन इस टैलेंट को भी तो एक्नॉलेज करो। तो ये है कि एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट आई लर्न फ्रॉम देयर कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं। Do you think somewhere you were lacking a male figure after your father passed away? And was there somebody, maybe a relative or anybody who was there to help you during that time? If I talk about the domination and the place where I felt the most कि जहाँ मेरे फादर होते या मेरा भाई होता, तो मुझे इन लोगों के आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो तब लगती है जब आपकी शादी होती है। Right. When you get married, आपका कन्यादान करने के लिए आपकी मदर को लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि कौन आएगा और कौन करेगा। हाँ, ये शी हैज़ टू आस्क समवन कि अच्छा आप मेरी बेटी का कर दोगे, बिकॉज इन आवर रिलीजन whomsoever is widowed, she is not allowed. अब तो मुझे नहीं पता कि whether it's there or not, उस टाइम पे नहीं था। So she was going to everyone, can you do this, can you do this? I still remember one of my brother, he's in army, he came out and he said yes I will do it, no worries. So अभी क्या है कि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन इतना, क्योंकि ही इज इन आर्मी, आई मीन यूके, बहुत कम बात होता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो जो है कि उन्होंने उस टाइम पे मेरा साथ दिया, बिकॉज आई एम अ पर्सन कि अगर मुझे कोई 1 रुपये की भी हेल्प कर दे ना, आई नेवर फॉरगेट, बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो लोग जब आप कुछ नहीं थे आपके साथ थे ना, वो हमेशा सच्चे हैं आपके, वो हमेशा आपके वेल विशर हैं, और जो आपके कुछ 1-2% सक्सेस करने पे या अचीव करने में आपके साथ जुड़ रहे हैं, दे आर नॉट रियल। बट ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? ऐसा होता है, बहुत बारी हुआ है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरी लाइफ में कि जिन्होंने व्हेन आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू पे माय स्कूल फीस, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करा, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी थे, कुछ वो जो रहते हैं ना हमारे यहाँ पे हमारी नेबरहुड में, उन्होंने भी काफ़ी करा। शायद उनको ये चीज़ याद नहीं होगी कि हमने ऐसा कभी करा था, बट आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा था, और मुझे मतलब आई ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देम। और बहुत सारे ऐसे थे जो डोमिनेटिंग भी थे कि एयर होस्टेस जब मैंने डिसीजन लिया, सम पीपल वैसे, ओ हमारी फैमिली में तो कोई गया ही नहीं, ये क्या है, मतलब हम तो पढ़ाई में हैं, हम तो पढ़ते हैं, वी आर इन मास्टर्स इन म्यूजिक, मास्टर्स इन डोगरी, मास्टर इन दिस, व्हाई यू आर सेंडिंग? माय मम सेड शी सेड दैट आई वांट टू गो फॉर इट, सो आई हैव टू हेल्प। तो बहुत सारा डोमिनेशन दिखाया। तो डोमिनेट करने वाले तो हमेशा आपके साथ रहते ही है, और मैंने ये चीज़ भी बहुत देखी है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, आपके पास कोई अच्छे वो कहते हैं ना चीज़ें नहीं हैं, कोई घड़ियाँ नहीं हैं, कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको शादी में भी अगर कोई बुलाता है ना, तो वो उस तरीके से नहीं बुलाता। किसी के हाथ कुछ कार्ड भेज देंगे, बोलेंगे कि अच्छा आना। आपके घर पे जैसे कि दिवाली में देयर इज़ अ कल्चर है कि हम एक दूसरे के घर जाते हैं, आपके घर नहीं आएंगे और बाकियों के घर में जाएंगे, आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे कि दे हैव टू, है ना? तो ये चीज़ें बहुत देखी हैं। But have these things stayed with you? Yes, now it's everything changed, everything changed. The reason behind कि मेरी मदर वो कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स को जो थोड़े दादी वगैरह के टाइम में, या मेरी मम्मा जैसे थे, मैं 90s किड हूँ, तो बोलते थे कि उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, तू उनके साथ क्यों कर रही है? वो हमारे घर नहीं आते, वाई यू आर गोइंग टू देयर होम, वाई यू आर स्पीकिंग टू देयर किड्स, क्यों कर रही है? उन्होंने मेरे साथ, दे नेवर स्टूड विद मी, तो तुम क्यों कर रही हो? तो मुझे रहता था कि वो बड़े थे जिन्होंने आपके साथ किया, नाउ देयर इज अ सेकंड जनरेशन, आई हैव टू डू, because I don't want to create that politics and everything, so I don't want to. My mom used to say me these things, but I never listen. And now ऐसा है कि कहते हैं ना कि अगर आपका विजन अच्छा है, आपका दिल साफ है, तो आप एक हार्ट से हार्ट बंदे को भी जीत लेते हो, है ना? तो मैंने उन लोगों के साथ करना कभी बंद नहीं किया। इवन वन ऑफ माई रिलेटिव, आई विल नॉट टेक द नेम, she might be understand by this podcast, when my real bua and the real when my dad got expired, she didn't come to our house, her real brother got died, she didn't come. My mom was very upset, she said no, she didn't come, now I will not go to her house forever ever. I go to her house, I have a
good bonding with her kids, everybody. And now she realized that I did a mistake. She cried so many times. Whenever I go to her, she always say, "Oh, mere se bahut badi galti." She's very old now. She always realized, but I made her realize with these things. But because I love you, you did this thing to me, but I don't have anything in my heart. I love you. So this is how I build these relations, and now they people love me so much. You mentioned Sai Baba, and you are a believer of Sai Baba. Could you tell how is your faith in him? सी भगवान जो है आप पे अपना फेथ तब बनाते हैं जब आप किसी मुश्किल में होते हो, है ना? जब आप किसी ऐसी लाइफ की उसमें होते हो कि आप बहुत परेशान हो, और उस टाइम मुझे लगता है गॉड के साथ जो रिलेशन है वो आपका ज़्यादा बनता है। हाँ, सो व्हेन आई गॉट मैरिड, और मेरी मदर को ये चीज़ बोली गई थी कि like the way you got a child with a lot of difficulties, and your girl will also have the same, and she will not have a boy and all. And you know, we some people believe on this thing. तो उनको भी कहीं ना कहीं शी वॉज वेरी स्केयर्ड कि यार हम लाइक आई यूज टू गो टू गॉड एंड से प्लीज गिव ब्लेस विद मी विद अ बॉय एज वेल, सो इसके साथ भी ऐसा होगा। सो मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ बिलीव ऑन साईं बाबा टू मच, बहुत ज़्यादा करते, सो मच। सो हुआ ये कि जब मेरी शादी को भी 2-3 years हो गए थे, सो वी यूज टू गो टू साईं बाबा, एंड देन आई प्रे कि अगर ऐसा हुआ, इफ आई ब्लेस विद अस, ऐसा नहीं है लड़की लड़का मेरे लिए मैटर नहीं करते। द थिंग वॉज कि आई वॉज नॉट हैविंग एनी ब्रदर, एंड आई वॉज नॉट that had that much father love in my life as well. I had little bit and for very short time. तो मुझे था कि अगर होगा तो my sister will also get a brother, है ना? For some relations होता, though she is not actually the sister, but she will also have somebody to tie the rakshas, to celebrate that, because on Raksha Bandhan I used to, अभी भी ऐसा होता है कि आई फील वेरी सैड या कुछ, सो आई टाई राखी टू साईं बाबा जी। ही इज द फर्स्ट वन, until and unless I don't tie, I don't celebrate this festival. सो वो था, तो आई वर्शिप, मैंने बोला कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा बिलीफ आप में जो है वो बहुत ही एक वो हो जाएगा, अटूट वो हो जाएगा। Then I blessed with a son, and I came with a very big medical issue. I diagnosed with the endometric cyst. उसमें क्या होता है कि लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंसीव और समथिंग उसमें था। तो दे सेड दैट, डॉक्टर सेड इट्स अ वेरी बिग रिस्क इफ यू गेट चांस एंड ऑल। सो I just went to Sai Baba and I said, I don't know what will happen and all, because in that time they said, okay, we'll do medication and all, so that will help you to stop everything, and then later on we'll operate it and all, and then you can think of a son. My husband was not ready. He said, no, I don't want to go for these operations and all, because you're very young, so we can't do these kind of things. So we went to every Thursday, अभी लगता है कि शायद बहुत बहुत सारे 30 या 35 साल हो गए हैं कि ऐसा नहीं हुआ है कि थर्सडे को we not go to we both are not in a temple of Sai Baba, या उनकी घर में पूजा ना हो, या वो उस तरह का एक थर्सडे को we have different kind of ambience wherever we stay, whether in UK or here. तो हुआ ये कि I conceived that time, and with the endometric cyst, and the doctor said it's a big risk, let's see what happened, and we'll take the risk. So they took the risk. At the end, the cyst was captured, and that time everything, my son was in a risk, but by God grace he was fine, and he was in a NICU for 5 to 6 days, and but it was okay. But anything, whatever I want, I always ask him कि I will do my 100%, but you have to be with me. और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने टचवुड कुछ उनसे मांगा हो और उन्होंने नहीं दिया हो। और कभी ना कभी ऐसे साइंस आ जाते हैं कि कभी कुछ होने वाला हो, या कुछ याद करवाना हो कि मैं कभी भूल गई हूँ या कोई चीज़, तो ऐसा होता है कि या तो ड्रीम में आ जाएंगे या तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसीलिए आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन साईं बाबा जी। और बहुत सारी ऐसी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी मैंने आपको बताया कि व्हेन आई लेफ्ट दिस कंट्री एंड आई मूव टू यूके, सो आई पुट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन साईं बाबा, ऑन माई गॉड ओनली। आई सेड यू आर द वन, व्हेनेवर पीपल यूज्ड टू आस्क मी हु इज गोना लुक आफ्टर योर सिस्टर एंड मदर, आई यूज्ड टू से माई गॉड इज देयर। सो वो जो विश्वास है, वो जो ट्रस्ट है, वो बना है, और दैट्स व्हाई आई एम हियर। After marriage,
Did you get the support that you wanted all your life from your in-laws, from your husband? How was that journey? सी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इन लॉज अच्छे नहीं हैं या जो भी है। देखो अगर मेरी जो अपनी ओपिनियन है उसमें ये है कि जब आप किसी, ये चीज़ मुझे तब समझ में आई व्हेन आई बिकेम अ मदर। तो जब एक मदर अपना बेटा जो है जिसे उसने इतने प्यार से पाला है, उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं उसके साथ, है ना? तो वो हमेशा चाहती है कि उसको भी वो गैप देने में अपने बेटे को थोड़ा सा टाइम लगता है ना? क्योंकि जब मैं मदर बनी तो मुझे हमेशा से ये होता है कि जब भी मैं उसको प्यार करती हूँ, whenever I pamper him, तो मुझे हमेशा ये होता है यार, one day he will go little far, isn't it, when he will get married and obviously he will be having his own life, और जैसे अभी वो बोलता है I can't sleep with you, so उसको करना पड़ेगा। देन आई रियलाइज कि जिसने मुझे अपना, मतलब कि जब शादी हुई है मैं उनकी फैमिली में आई हूँ, समवेयर समहाउ शी माइट बी गोइंग थ्रू विद दिस फेयर कि जो आ रहा है माइट बी शी इज गोना टेक माई सन फार अवे फ्रॉम मी, माइट बी शी विल बी लाइक दिस कि वो बोले कि नहीं, यू हैव टू बी विद योर मदर एंड यू हैव टू मैनेज विद बोथ एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली यू हैव टू डील विद बोथ एंड विद अ वेरी नाइस वे एंड मैनेजेबल वे, है ना? तो वो चीज़ मुझे लगी क्योंकि मेरी जब शादी हुई है तो मेरे ऑलरेडी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो, मैं छोटी हूँ और वो मेरे से शी इज एल्डर टू मी, और वो थे वहाँ पर उनके इनके मेरे हस्बैंड के ब्रदर की जो वाइफ है। तो उनका साथ जो उनका डीलिंग था दैट वाज समथिंग एल्स। व्हेन आई केम इनटू द फैमिली सो शी वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो है मतलब जैसे घर का काम है वो ज़्यादा देखे, और मतलब जो है ऑल द टाइम नई बहू से होता है कि घर में रहे। अभी तो नहीं है, नाउ द थिंग्स हैज़ बीन चेंज, मतलब मैं उस काफ़ी देर पहले की बात कर रही हूँ, इट्स बीन आफ्टर आई थिंक 12 ईयर्स अगो। तो ये रहता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं था कि आई यूज्ड टू फाइट या मैं लड़ूँ, मैं बोलूँ कि यार आपने, मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे जाना ही है, तो उसके पीछे मैं लड़ाई करूँ। देखो चीज़ें जो हैं यू हैव टू मैनेज। अगर आप एक वर्किंग, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर दोनों नहीं कमाते हैं तो सर हस्बैंड जितना मर्जी अर्न कर रहा है, ठीक है, एक अपनी आइडेंटिटी होना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन ओपिनियन, फाइन। एक अपना अमीर होना और एक अपनी आइडेंटिटी होना, दोनों में बहुत फर्क है। Right. तो अमीर तो ठीक है, आपके पास पैसा है जो भी है, लेकिन आप क्या हो? आप दुनिया में आए हो, आपको इतनी ब्यूटीफुल चीज मिली है दुनिया में, लेकिन आप हो कौन, है ना? यू पारुल है तो पारुल क्या है, कौन है? उसमें एक कोई तो क्वालिटी होगी, क्योंकि जब हमें भगवान भेजते हैं ना, दे एवरी पर्सन, कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे वो स्पेशल नहीं बना के भेजते। हमने वो लंदन टू चाइना एक मूवी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी उसमें अक्षय कुमार जी थे, तो उसमें एक डायलॉग बोला था कि एवरी पर्सन हैव वन मूव, बट उस मूव को पहचानने का जो है एक टाइम आना चाहिए कि आप में क्या चीज़ है ना? तो वो जो आप में चीज़ है, अगर आप वही चीज़ करोगे तो यू विल बी सक्सेस इन, यू डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर लाइफ, है ना? तो मेरी मदर इन लॉ जब था तो उन्होंने मतलब कि था कि ये स्कूल जाती है, ये है वो है, तो मुझे था कि अगर मैं अर्न कर रही हूँ, व्हाई शुड आई पुट माई मदर इन लॉ इन अ ट्रबल टू कुक फूड फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई सन, फॉर एवरीवन। इफ आई एम अर्निंग, सो आई थिंक इट्स माई ड्यूटी कि जो मेरे पीछे के काम है that has to be covered by someone, and I am the one who has to pay to that person, so that she also needs some rest. She's not my servant, like I'm going there and she's looking after the whole house. It means अगर ऐसा है तो house is just a restaurant for me, not a house, ना? So मैंने उस चीज़ को काफ़ी बैलेंस करा, and when she saw this thing herself कि भाई इसने इस तरह से मैनेज करा है, और अगर हम इसको बोलते हैं कि क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट वो था, मेरी फैमिली थोड़ी अलग थी, तो उन्होंने पूरा कॉपरेट किया। और मतलब बहुत, अभी जब मैं बाहर चली गई हूँ, मुझे लोगों से पता चलता है कि वो बोलती हैं कि वो थी तो घर था, वो थी तो रौनक थी, अब रौनक नहीं लगती है, वो आ रही है, वो जा रही है, तो लगता था कि घर में कोई है, एंड नाउ शी इज देयर, आई फील वेरी बैड। तो एक यहाँ चीज़ है कि लड़कियों को लगता है कि सास जो है, मतलब कि एक नेचर है, हर किसी का एक करेक्टर है ना? सास का करेक्टर जो है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, एक सिंगल बच्चा होता है, तो वो बहुत नॉटी होता है, बहुत जॉली होता है। जब दूसरा अच्छा बच्चा घर में आता है तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है ना, उसमें वो चीज़ आ जाती है कि मैं बड़ा हूँ। तो सेम चीज़ जो है इस रिलेशन में भी है, जब एक माँ एक सास बनती है ना, तो मुझे लगता है कि उसको एक तो फेयर ये होता है कि मेरा बेटा जो है ना, उसका प्यार जो है वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा ना। और एक जो नई लड़की आ रही है, अब किसी के बच्चे को अपना बच्चा मान के
करना इट्स डिफिकल्ट। वो डिपेंड करता है लड़की पे भी कि वो कितना अपनी तरफ से दे रही है। हम कहते हैं कि सास सास जो है माँ नहीं बन सकती, या अगर सास नहीं बन सकती तो बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर बन जाएगी तो सास अपने आप बन जाएगी, क्योंकि हम छोटे हैं ना, हमें दिखाना है। वो इस एज में आके 70s में या 80s में आप उनको बोलोगे कि वो आप अपनी तरफ से रूड रहो और वो आपके साथ बहुत अच्छा बन जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। इट्स अ वाइस वर्सा, जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा, है ना। तो उस चीज में मुझे इनिशियली लगा कि थोड़ा सा रोक रहे हैं, बट व्हेन शी सॉ दीज थिंग्स कि आई एम वेरी गुड विद द रिलेटिव्स, माई इन लॉज की साइड से जो रिलेटिव्स हैं, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। तो उनको मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज करवाई कि मम्मा ऐसा नहीं है कि अगर जो लड़की काम कर रही है तो वो घर में आके 24 घंटे अगर काम कर रही है किचन में तो वो एक अच्छी लड़की है ना। तो बाकी की चीज़ें भी हैं, आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनसे अगर कोई बात ही ना करे ढंग से, मैं बोलूँ कि आई एम बिजी, आई कांट टॉक टू देम, तो वो इंसान जो है जो बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो वो गलत है। तो आहिस्ता थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बदल जाती है सोच, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका विजन अच्छा है, अगर आप जो कर रहे हो उनको बताना पड़ता है कि वो सही है और वो क्यों है, रीजन। और इफ आई टॉक अबाउट माय हस्बैंड, ही इज वेरी सपोर्टिव। You spoke about Papa Ki Pari, right? So, do you think when you were missing that love, you became a hyper independent human or a woman? यस, वो कहते हैं ना हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। तो जब आप लाइफ से ही सब कुछ खुद कर रहे हो, है ना, तो आपको खुद में ही करने की आदत पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए जब कोई करता है ना, यू फील इरिटेटेड, तो आपको लगता है क्यों यार, मैं शायद करती तो शायद ज़्यादा अच्छा करती, इन्होंने क्यों कर दिया। तो वो चीज़ थोड़ा इरिटेट कर जाती थी कई बारी। बट मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को करा, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो, आपके लिए किसी ने कुछ लाया और आपने बहुत गंदी तरह रिएक्ट किया कि क्यों लाया, है ना, उस चीज़ को अगर दूसरा इंसान भी हाइपर होके हैंडल करे तो फिर मुझे लगता है वो तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन बन जाती है। तो उसमें एक ये चीज़ थी। और जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरी मम्मा और हमने बहुत चीज़ें जो है छोटी-छोटी करके घर में बनाई। मतलब जैसे कि एक साथ किसी चीज़ की पेमेंट करना डिफ़िकल्ट था। व्हेन आई सॉ माय सिस्टर, शी वाज़ वेरी यंग, एवरीबॉडी हैव अ एसी इन देयर हाउस दैट टाइम। आई थॉट शी इज़ वेरी यंग, आई हैव टू गिव हर। सो मैं क्या करूँ? सो हमारे वहाँ पे दैट टाइम यहाँ जम्मू में इंस्टॉलमेंट्स का स्टार्ट हुआ था नया-नया। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, हमने लिया स्लोली वी टुक एवरीथिंग इन अ हाउस। तो वो एक हैबिट पड़ गया था कि कोई चीज़ लेनी है तो इंस्टॉलमेंट्स पे। व्हेन आई गॉट मैरिड, सो व्हेनेवर इट केम टू बाय समथिंग, मेरे हस्बैंड वाज टोटली अगेंस्ट। ही वाज नॉट रेडी। ही सेड इफ यू डोंट हैव मनी डोंट बाय, but don't go with these things कि installment है, he doesn't like because he is having his own rules and principles, so he was just saying in that way। तो वहाँ मुझे इरिटेट करता था कि यार ऐसा क्यों है, तो मैंने तो मतलब सारा कुछ ऐसे ही बनाया। तो देन ही मेड मी रियलाइज पारुल, टाइम जो है वो बदलता है और उसके साथ अब आप भी बदलो, है ना। कि उस टाइम पे आपका फेस ऐसा नहीं था, यू केम अक्रॉस विद लॉट ऑफ हार्डशिप, बट अब थोड़ा सा फर्क है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा बदलो। तो वहाँ पर मैंने करा। और कभी कभी ये चीज़ें इरिटेट कर जाती थी कि आई वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग बाय माई ओन, क्योंकि मैं खुद मैनेज करती थी सारा कुछ। तो मुझे होता था कि जो भी करना है तो वो मुझे ही करना है। तो वहाँ थोड़ा सा इरिटेट हो जाती थी, लेकिन अब आई एम ट्राइंग टू ओवरकम विद दीज थिंग्स एंड Now you're accepting the love. Right. You spoke about identity as well. Do you think you've got your identity now after so many years? सी साइशा, लाइफ में जहाँ आपको ये लगने लगता है ना कि यू गॉट योर आइडेंटिटी, लाइफ इज फिनिश्ड है। मेरी ये परसेप्शन है ना, ये मेरा थॉट है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। आप एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हो, आप किसी बुरे इंसान से भी कुछ सीखते हो। और जिस दिन आपको लगता है कि मैंने अचीव कर लिया एंड नाउ आई एम ओके, ऐसा नहीं होता है ना। मुझे लगता है लाइफ बोरिंग हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। अभी मैं बोलती हूँ कि मुझे, बिकॉज इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना, मुझे वहाँ जाना है। और मतलब अगर मैं बोलूँगी नो आई गॉट एवरीथिंग वट एवर, क्योंकि हमें तो मतलब हमारा काम है, गॉड हैज़ गिवन अस दिस लाइफ कि हम अपना काम करें। और काम ये है कि ज़िंदगी जो है उसमें जितना आप सीखोगे, आगे बढ़ते जाओगे, जितने अच्छे बन के अपना काम करोगे एक काइंड हार्टेड से, क्लियर हार्ट से, उतना आप आगे जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मैंने आई अचीव नथिंग बिकॉज अचीव करना तो वो है कि जब आप रब को पालो, है ना। तो वो चीज़ अभी नहीं हुई है ऐसा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो अभी करनी है। और अपनी मदर को उस पे देखना है, अपने घर वालों को उस ऐसे स्टेज उस पे देखना है कि जब कहते हैं ना कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, तो अब वो हो गया है।
तो अभी वैसा नहीं हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस, स्टिल डूइंग माई हार्ड वर्क, and let's see what I this is my plan. Whatever I'm doing, maybe God has some another plan for me, because sometimes you think something else and He has something else for you. But I want to appreciate you're so positive after all the suffering and all the things that you've gone through in your life. And the first conversation off camera, when you said that, I'm an auto driver's daughter, I just felt that when I was listening to everything, I was getting goosebumps. But the kind of girl you are, the strength that you have in you, and the pride, you did not hesitate to say it on camera or off camera who you are. You cherish what you have gone through in life and who you are. So you have a long way to go, 100%. And as we're coming to an end, I would like to ask you, is there something that you'd like to share? Yes, I would like to tell those people who think कि लाइफ जो है अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लाइफ ख़त्म हो गई है. आई केम अक्रॉस विद लॉट ऑफ इन लॉस प्रॉब्लम, और अब तो मैं आई एम इन माई 35 एंड 40, तो अब कुछ नहीं है. अगर हम बात करें मोटिवेशनल लोगों की, अगर हम KFC की बात करें, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, मीन्स जो भी फाउंडर है, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन द एज ऑफ 40. तो इट ऑल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं. अगर हम शुगर ब्रांड की बात कर लें, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मोटिवेशनल, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट की है जब लोग बोलते हैं कि यार अब तो सब फिनिश है ना. तो मेरा यही मैसेज है टू ऑल द पीपल जिनको ये लगता है कि लाइफ जो है 30-35 साल के बाद ख़त्म हो जाती है. ऐसा नहीं है. एज इज़ जस्ट अ नंबर. It's true. Even sometime I have a big huge argument and conversation and so many things on this topic, that age is just a number. When you start thinking that you are old, it's all here. It's all in your mind. Once you think in your mind, oh I am old, it means you are old. है ना. तो ये चीज़ है कि जब भी मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते थे लाइफ में जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो, हैव पेशेंस. अपनी जिस रोल में आप अभी हो, उस रोल को अच्छी तरह से निभाओ, ताकि जब आप पलट के देखो तो कोई आपका बच्चा, पति या इन लॉज ये ना बोले कि यू वर नॉट फिट इन दैट, यू वर नॉट फिट फॉर दैट रोल, बट नाउ यू आर गोइंग फॉर दिस रोल. तो वो जब आप पीछे मुड़ के देखो तो सब कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और आपको लगे कि यस नाउ दिस इज द टाइम एंड आई कैन गो हेड फॉर माई करियर. एंड बताओ उनको जो आपके साथ है कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट. अगर आप किसी चीज़ के लिए सीरियस उतना नहीं हो, आप कभी भी किसी को उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर पाओ. इफ़ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ सिंगिंग प्रोफेशन, अगर मुझे होता कि मुझे सिंगिंग में जाना होता, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करके मैं मोटिवेट कर लेती, है ना. बट आई थिंक मेरी लाइफ में या भगवान को, जैसे साईनाथ को कुछ और मंजूर था, वो मुझे कहीं और लेके गए. शायद तभी जब मुझे आई वॉज रिजेक्टेड एज RJ 92.7 FM में जब था, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा था, है ना, इतना बुरा नहीं लगा था. तो जिस चीज़ को आप चाहते हो तो वो करना जो है, उसमें कोई हडल नहीं हो. फैमिली तो बिल्कुल नहीं हो सकती. कुछ लोगों को ये लगता है कि मदर हो, ये है वो है. तो अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हो उसे करो, और लेकिन सच्चे दिल से अगर करना चाहते हो, और उस पर भगवान के आगे भी जब आप बोलते हो कि मतलब मुझे ये चीज़ दे दो या कुछ, तो अगर सच्चे दिल से कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. तो एंड नेवर 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 गिव अप, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, बिकॉज यू नेवर नो कि अभी कौन सा दरवाज़ा जो है आपके लिए खुल जाएगा. मे बी अभी नहीं खुलेगा, थोड़ी देर के बाद खुलेगा, लेकिन वो तभी खुलेगा अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि वो दरवाज़ा खुले. दैट्स ऑल अबाउट just to motivate others. That's it. Thank you so much. It was lovely talking. Thank you. Same here, Saisha. Thank you. Like, Share subscribe to Dopamine High. Thank you.